Greetings everyone. Welcome back to another episode of Unscripted. I am Ayush Mishra from Media Club IIT BHU. And I'm Arushi Agarwal from ECEL at IIT BHU, and we have a very special guest with us today. An entrepreneur, a best-selling author, and one of India's best influencer. He has transformed the way we think about startups, personal finance, and growth. He is a firm believer of failing, learning, and growing. He continues to redefine how India approaches towards money, career, and success. We are absolutely thrilled to have Ankur Warikoo sir with us today in this insightful conversation. Sir, it's our pleasure to have you today. Thank you so much for having me. Thank you. First of all, welcome to E-Summit 2025 sir. Thank you. I am guessing कि शायद ये आपका first time है बनारस में. बनारस में नहीं है लेकिन IIT BHU में है. तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? Incredible energy. बहुत मजा आया. We just finished a session. It went for 1.5 hours. 6:30 से 8 बजे तक. I was just remarking while coming to the guest house that इतनी रात को भी insane student energy है. Then I just realized कि आप लोग तो सोते ही नहीं है तो it is absolutely valid, but I loved my time. बहुत मजा आया. Sir, it's an absolute pleasure to have you. Like E-Summit couldn't have a better start. Thank you. So as right now there's a lot of talk about entrepreneurship and the new age wave and how India is approaching towards different issues regarding startups. How a first time entrepreneur should validate his or her idea before going all in? That's a really good question. I think the safest way of doing that is अपने दोस्तों से, माँ बाप से, रिलेटिव से प्लीज मत पूछिए कि आइडिया कैसा है, क्योंकि वो प्यार मोहब्बत में बोल देंगे कि आइडिया बहुत अच्छा है एंड आप फिर जज्बात में बह जाएंगे. द ट्रू वैलिडेशन इज व्हेन यू गो टू कंप्लीट स्ट्रेंजर्स. सो आई यूजुअली प्रपोज दिस मॉडल क्योंकि मैं खुद के लिए भी करता हूँ. लेट्स से आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं इन व्हाटएवर कैपेसिटी एंड गिव इट अ नेम. कोई भी रैंडम नाम हो सकता है, नीडेंट बी द ब्रांड नेम एक्चुअली. गो एंड रजिस्टर दैट डोमेन नेम एंड गो एंड बिल्ड अ 1-page वेबसाइट फॉर दैट बिजनेस कि जैसे वो legitimate actual running business हो. Talk about the product, talk about the services, the features, maybe even pricing, testimonials. झूठ, सब कुछ झूठ है. लेकिन you are झूठ इस हिसाब से नहीं है कि आप किसी का कुछ कॉपी कर रहे हैं या कहीं किसी और का काम अपना बना रहे हैं. झूठ इन द सेंस कि ये दुनिया में अभी है नहीं, but you are creating it from your imagination. And then run Instagram ads on it for say 2 weeks. 100-200 रुपए दिन के, and just let it be for 2 weeks. You will see कि कितने लोगों ने वो ad click किया. You will see कि कितने लोग उस वेबसाइट पे आए. You will see कि कितने लोगों ने अपना मोबाइल नंबर या अपना email address दिया to inquire about it, to actually tell that hey, I'm interested in this and so on. That will give you far more insight and data about whether the actual idea is worth anything or not than speaking to random people who know you. अब यही अगर आप 2-3 businesses के साथ करेंगे, you'll actually be able to compare between the two कि कहाँ ज़्यादा clicks आए, कितने सस्ते आए, कितने लोगों ने actually वो conversion करी of email and phone number, and that will have a wonderful way for you to compare the ideas that are there in your head to actually go deep into it. Very well said sir. तो अभी जैसे हम लोग IIT BHU में हैं, तो मेरा एक सवाल जो मैं स्टूडेंट फ्रेटर्निटी की तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो एक एवरेज कॉलेज स्टूडेंट है, वो दिन का अपना सारी क्लासेस के बाद दिन का अगर कुछ टाइम 1 या 2 घंटा निकाल रहा है, तो उसको कहाँ यूज़ करना चाहिए और उसके लिए क्या फाइनेंशियल एडवाइसेस आप देख सकते हैं, या उसका जो मॉनेटरी जो फाइनेंसेस का जो भी मैनेज करने के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो बेटर मैनेज कर सके इन हिज स्टूडेंट लाइफ? यार एक तो स्टूडेंट लाइफ में द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू मेक इज नॉट इन मनी बट इन योरसेल्फ. तो आप जितना भी कमा रहे हो, जहाँ से भी कमा रहे हो, कोई इंटर्नशिप हो गई या कहीं आपने कोई साइड गिग किया हुआ है, दैट इन्वेस्टमेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ. लेकिन अगर वही पैसा या वही वक्त आप अपनी लर्निंग के लिए डिवोट करेंगे, आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको डर लगता है लेकिन आपको पता है कि आपको करना चाहिए, वेदर इट्स कम्युनिकेशन स्किल्स, वेदर इट्स क्रिटिकल थिंकिंग, वेदर इट इज अप्रोचिंग स्ट्रेंजर्स, वेदर इट इज सेलिंग, वेदर इट इज having a conversation with people and getting intrigued with what there is to learn and so on. इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फायदा होगा then actually trying to make money कहीं कुछ इन्वेस्ट करके या FNO में चले गए या कहीं कुछ ऐसा कर दिया है, वो सब I would not recommend. So I would say the best investment as a student is constantly investing in yourself
एंड 3 चीज़ें मैं हर एक स्टूडेंट के लिए हमेशा बोलूँगा. कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि इस दुनिया में वो बहुत 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 ज़रूरी है. क्रिटिकल थिंकिंग, जहाँ आप अपने कुएं में ही एक मेंढक के रूप में ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है. आप इंटेलेक्चुअली किसी चीज़ को डिबेट या इंटरनलाइज ही नहीं कर सकते, तो वो चीज़. एंड थर्ड, जस्ट जनरल अवेयरनेस अबाउट हाउ थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. ये नहीं है कि यहाँ कुछ पॉलिटिक्स में हो रहा है तो अब यही हो जाएगा. बहुत सारी चीज़ें मिक्स होके जुड़ के एक आउटकम निकालती हैं. उस चीज़ को समझ पाना तभी पॉसिबल होगा जब आप चीज़ों के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे. यू डोंट हैव टू बिकम एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग, बट सरफेस लेवल पे भी अगर आप जानेंगे कि पॉलिटिक्स कैसा होता है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, AI में क्या चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, इट विल जस्ट गिव यू अ होल पर्सपेक्टिव दैट यू वुड नीड. आई ऑफन थिंक कि किताबें पढ़ने से ये सबसे बेस्ट आता है, लेकिन आजकल वीडियो देखने से भी आ सकता है. So it's all about the long run, right? So India and global has had a lot of conversation कि Indian startups are getting investments from outside. Like I read somewhere like 85% of the angel investment in India is done from is sourced from outside. Not Indian founders are not investing that much. So how we can actually ungap that gap in the market, and at the same time, sir, it's important for us to globalize stuff. So what's your take on that? And because again हम लोग जब हम business की बात करते हैं, so most of the time we just think about finance and the analytics and the data, but we forget that there are a lot of things going on the geopolitical side of the nations. So how do you think about that? So first is कि at least as somebody who understands capitalism or at least endorses it, I don't care about the origin of capital. In fact, I would say a smart business person would not worry about कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है. What they worry about is कि ये किस रेट पे या कॉस्ट पे आ रहा है. Because ultimately उनका काम है कि उस कैपिटल को डिप्लॉय करके एक ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न उससे बना पाना. तो अगर मैं फ़र्ज़ करिए किसी से 6% पे पैसे उठा के 12% जनरेट कर सकता हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो 6% कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वो 12% जो जनरेट होंगे उससे अगर आप इस देश में बना रहे हैं, इस देश का फ़ायदा होगा. आप उस पर टैक्सेस देंगे, उससे GDP बढ़ेगा, उससे एक साइकिल ऑफ एंड सप्लाई ऑफ मनी होगा एंड सो ऑन. सो आई वुडंट वरी अबाउट दैट. इनफैक्ट आई थिंक कि बहुत प्रॉमिसिंग साइन है कि दुनिया का पैसा भारत में आ रहा है टू बिल्ड स्टार्टअप्स, क्योंकि ये कम से कम भारत के स्टार्टअप्स हैं. तो यहाँ बनाएंगे, यहाँ सीखेंगे, चाहे जहाँ भी बेच रहे हों, बट एटलीस्ट दैट मनी विल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कम टू दिस कंट्री. फ्रॉम अ ग्लोबलाइजेशन पर्सपेक्टिव, जो एक फैसिनेटिंग चीज़ कोविड की वजह से हुई अकॉर्डिंग टू मी वाज पीपल रिकग्नाइज्ड कि ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी इज़ नॉट अ डेटरेंट और एन एनेबलर एज मच एनी मोर. आप एक छोटे से शहर में बैठकर एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ और एक लैपटॉप के साथ अपना बिजनेस चला सकते हैं. क्या वो बिजनेस बहुत बड़ा बनेगा? शायद नहीं, लेकिन द फैक्ट कि आप वो कर भी सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, एज अ 1-person शॉप और मे बी अ 2 to 3 people स्टार्टअप is something that was not possible even a decade back. And now you expand that to say कि India अपने economics की वजह से, अपने talent की वजह से and now the influx of capital India में ही बनाने possible कर चुका है. But the market is now global. So we can make in India but make for outside of India. तो हमारा software बाहर जा सकता है, हमारे products बाहर जा सकते हैं, हमारी services बाहर जा सकते हैं. And that I think is the biggest change that is going to happen in the next 10-20 years when it comes to India, कि हमारे पास टैलेंट और कैपिटल की कमी अब नहीं है. आइडियाज़ की कमी तो कभी भी नहीं थी. तो हम बहुत हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं विच कैन बी एक्सपोर्टेड इंटरनेशनली. एंड जो IT इंडस्ट्री ने 1990s और 2000s में किया था, वही आई थिंक द स्टार्टअप इकोसिस्टम इज नाउ गोइंग टू डू फॉर द नेक्स्ट 2 decades. ग्रेट इनसाइट सर. मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि मतलब जो अभी आपने जैसा बोला कि
जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने सेल्फ में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने स्किल्स को ग्रो करना चाहिए। तो उसके लिए आपने एक चीज़ और बोली कि आज बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो से भी काम चल सकता है। तो उसमें एक जॉनर होता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर सेल्फ हेल्प का जो जॉनर होता है, तो उसमें आपको लगता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस सिर्फ वो देखते हैं या उसका कंटेंट सिर्फ कंज्यूम करते हैं बट उस पर एक्शन नहीं लेते? क्योंकि इसमें एक लूप क्रिएट हो जाता है जिसमें मैं खुद ये कई बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, एंड मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनको मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि वो सुधरना चाहते हैं एंड दे सीक मोटिवेशन इन दोज वीडियोस and they just got a dopamine infused booster after seeing that video, but it is not that much that they could have some actionable things in them. बहुत बहुत सच बोला यार। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो जब कभी भी आप कोई सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम करते हैं, इट गिव्स यू द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऐसा सीखा जो आपको पहले नहीं पता था, और ये सीखना या जानना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो आपको लगता है कि यार तो कुछ ऐसा सीख गए जो हमें नहीं पता था, अब हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता है, अब हमें प्रोडक्टिविटी के बारे में पता है, अब हमें अपनी एंग्जाइटी को कैसे काम करें उसको पता है, ये सब पता है। लेकिन उस पता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप कुछ करते रहे नहीं है। बट व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इज, ये अभी का फिनोमेना नहीं है, दुनिया भर हमेशा से ऐसे ही चला है कि 99% लोग उसको कंज्यूम करके उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, 1% लोग उसके बारे में कुछ करेंगे और वही आगे बढ़ेंगे। तो खूबसूरती इस दुनिया की यही है कि कंटेंट की कमी नहीं है, इंस्पिरेशन की कमी नहीं है, मोटिवेशन की कमी नहीं है, एक्शन की कमी है। एंड एक्शन बाय डिजाइन बहुत कम लोग ही लेते हैं। इट इज द सेम थिंग लाइक जब आप इंस्टाग्राम पे होते हैं या लिंक्डइन पे होते हैं या ट्विटर पे होते हैं या किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होते हैं, 95 to 99% लोग सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, स्क्रॉल करे जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइक मार देते हैं, कमेंट कर देते हैं। 1% लोग होंगे जो क्रिएट कर रहे हैं एंड वही फिर अपने लिए कुछ बना रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ वक्त बिता रहे हैं क्योंकि मैं क्रिएट करता हूँ, लेकिन आप सिर्फ कंज्यूम करते हैं। जिस दिन आप क्रिएट करना शुरू कर देंगे तो आप भी एक अलग मकाम पे पहुंच जाएंगे। दिस इज द स्प्लिट ऑफ हाउ द वर्ल्ड इज। द क्वेश्चन इज कि हम कहाँ होंगे। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ पे हम एक्ट करें, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम बिना एक्ट करे हुए सिर्फ एक मुर्दा लाश जैसे अपने दिमाग को कंटेंट ही ना देते रहे, चाहे वो किताबों के रूप में हो या वीडियोस के रूप में हो या मोटिवेशनल टॉक के रूप में हो या कुछ भी हो। इफ योर इंस्पिरेशन एंड योर मोटिवेशन डजंट गेट यू टू एक्ट, इट इज यूजलेस। इट्स लाइक जंक फूड। So I've seen you all over internet talking about the power of imagination and time management and how important it is. And I saw your interview where you were talking about how you track your own time. Yes. And you've been doing this for a long time. Right. But I as a lazy person, I think that it's more time consuming for me to track my own time. So what are those underrated habits that as a student who has extremely busy schedule can actually put an effort to make that habit a routine? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, एंड आप लोग इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यू विल अंडरस्टैंड दिस डेफिनेटली बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने का सबसे पहला कदम होता है उसको मेजर करना। जिस चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते उस चीज़ को आप कभी इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो अगर आप टाइम मैनेज करना चाहते हैं, वेट मैनेज करना चाहते हैं, अपना हेल्थ मैनेज करना चाहते हैं, अपने रिश्ते मैनेज करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई मैनेज करना चाहते हैं, anything that you want to improve, you first have to measure and you have to form what is called a baseline. कि baseline क्या है? तो मैं अपने पैसे को मैनेज करना चाहता हूँ, आज मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे रिश्तों को मैं मैनेज करना चाहता हूँ, आज मैं क्या कर रहा हूँ? मैं किताबें पढ़ना चाहता हूँ, आज मैं क्या कर रहा हूँ? जब तक आपके पास वो बेसलाइन नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो तो अपनी हवा में ही है, कुछ एक फीलिंग्स ही है। जैसे ये हो गया ना, मोटिवेशन वीडियो देख के लग रहा है कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है कुछ। वो बेसलाइन में अगर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है तो नहीं है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एनीथिंग दैट यू विश टू इम्प्रूव। तो मैं बोलूँगा कि इसका ना कोई हैक नहीं है, क्योंकि अगर हैक होता तो हर एक इंसान कर रहा होता। ये मेहनत का ही काम है। दैट इज यू हैव टू स्टार्ट बाय मेजरिंग। तो जब मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को एज अ स्कूल स्टूडेंट अडॉप्ट किया, मैंने ये नहीं बोला कि अरे कल से मैं एकदम ऐसे मैनेज करूंगा जैसे मैं भगवान हूँ ना। आई वाज लाइक पहले देख तो लूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैंने 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना अपने वक्त को नोट किया। मैंने देखा यार
कितना ही टाइम मैं फालतू चीज़ों में बर्बाद कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि आप सोशल मीडिया पे कितना वक्त डालते होंगे, एंड यू बी लाइक मे बी 2 घंटे 3 घंटे 4 या जो भी होगा, वट एवर दैट नंबर इज, मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ जो भी आप नंबर बोलेंगे ना उसका कम से कम दुगना ही सच होगा, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है। आपको लगता है कि इतना है या आप चाहते हैं कि इतना हो, बट वाकई में बहुत ज़्यादा होगा। अब जब तक वो आप मेजर ही नहीं करेंगे आप उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? सो व्हेन आई सॉ द रियलिटी ऑफ हाउ आई वाज स्पेंडिंग माय टाइम, दैट इज व्हेन आई वाज लाइक यार इसको तो अब बदलना पड़ेगा। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अ ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लाइफ। मेरे एक्सपीरियंस में if you start measuring something, you automatically start improving it because you are measuring it. जैसे ही आप एक चीज को नापना शुरू करते हैं आप ऑटोमेटिकली उस चीज में अच्छा होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी पढ़ाई के घंटों को नापना शुरू कर देंगे you will automatically start spending more time. अगर आप अपना वजन मेजर करना शुरू करेंगे you automatically start getting better. अगर आप अपने फूड के कैलोरीज को मेजर करना शुरू कर देंगे you automatically start becoming aware. अगर आप अपने वक्त को मेजर करना शुरू करेंगे you will automatically start realizing how to spend your time. The sheer act of measuring something often leads to that being improved. तो इसका कोई हैक नहीं है। थैंक यू सर फॉर द ग्रेट इनसाइट्स। मेरे लिए तो काफ़ी काम की ये तो फॉर श्योर। एंड मैं फिर से स्टूडेंट्स का ही क्वेश्चन प्लीज जैसे कि मोस्ट ऑफ अस अभी जो हमारे इंस्टीट्यूट में आप बाकी जो भी देख रहे हैं वो मोस्ट ऑफ देयर 20s में है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो 20-year-old अंकुर वारिक थे, तो अगर आपको उनको कुछ सजेस्ट करना होता है या उनको कुछ एडवाइसेस देनी होती वो क्या आप देते जो हमारे लिए भी applicable? बिल्कुल यार, मैंने ना इनफैक्ट इसके बारे में ट्वीट भी किया था। 5 चीजें बोलूंगा। एक, अपनी हेल्थ पे फोकस करिएगा। ये 20s में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि 20s में ना हमारी बॉडी इतनी अमेजिंग होती है कि हम उसको जितना भी स्ट्रेस डाल दें और जितनी भी बुरी तरह ट्रीट करें वो तब भी चलती है। तो आप अनशन टाइम पे सो रहे हो, अनशन टाइम पे खा रहे हो, कुछ चल रहा है इधर उधर, आपकी बॉडी तब भी चलती रहेगी बिकॉज इट्स जस्ट सो यंग, सो एडेप्टेबल, सो फ्रेश। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है ना वो 30s और 40s में दिखना शुरू होता है। एंड तभी यू सी कि हमारा जनरली एज अ कल्चर हमारे माँ बाप हमेशा अनहेल्दी रहते हैं। कहीं कोई जोड़े का दर्द चले जा रहा है, कहीं कोई पीठ का दर्द चले जा रहा है, कहीं कोई डायबिटीज बीपी हो ही जा रहा है। एंड इट इज सो नॉर्मलाइज्ड। हमारे देश में पेन में रहना इज जस्ट नॉर्मलाइज्ड कि माँ को हमेशा कोई ना कोई दर्द होता ही है। एंड वी आर लाइक सो ओके विद दैट। व्हाई शुड वी बी ओके विद दैट? इट इज ऑनेस्टली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने वो रियलाइज नहीं किया। सो हेल्थ नंबर 1। नंबर 2, अपने पैसे को मैनेज करना। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इट डजंट मीन कि आप अपने 20s में करोड़पति बनने का अरमान रखें या बोलें कि अरे फायर नंबर तक पहुंचना है, बिल्कुल एकदम फ्री करना है अपने आप को या कुछ ऐसा। इट इज सिंपली पूरी शिद्दत के साथ डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्ट करना है एंड लेट कंपाउंडिंग टेक ओवर बिकॉज दैट इज अ ब्यूटिफुल थिंग विच यू विल ओनली रियलाइज वंस यू डन इट फॉर लॉन्ग। नंबर 3, बी अवेयर ऑफ व्हाई यू मेक द डिसीजंस यू मेक इन लाइफ। अवेयर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही डिसीजन लेंगे, इसका मतलब ये आपको पता है कि वो डिसीजन आप क्यों ले रहे हैं। अक्सर हम डिसीजन जिंदगी में ले लेते हैं लेकिन हमें आइडिया ही नहीं है कि हम क्यों ले रहे हैं। जैसे कि हमने 11वीं कक्षा में साइंस क्यों ले ली, हमें कोई आइडिया नहीं। मतलब नंबर अच्छा है तो सब वही वाले लोग हैं जो साइंस ही ले लेते हैं, तो ले लो। अगर बिजनेस फैमिली से हैं तो कॉमर्स ले लो। नंबर अच्छे नहीं आए तो सोशल स्टडीज़ ले लो। इट इज़ जस्ट सच अ horrible way of deciding what you will be doing at least for the next 5-10 years of your life. But यही सच है। सर पैर नहीं लगाया था, किसी एक इंजीनियर से बात नहीं करी थी कि होता क्या इंजीनियरिंग करना, सोचा भी नहीं था कि कैसे होगा क्या होगा, बट कर दिया। So please be conscious of why you're making a decision that you are. 4th, relationships, and that starts with yours. आपके साथ का रिश्ता क्या है? Please spend time with yourself. अनफॉर्चुनेटली आप लोग एक ऐसे ज़माने में पले बढ़ रहे हैं जहाँ आप खुद के साथ वक्त नहीं बिताते। आप या तो किसी इंसान के साथ या फ़ोन के साथ वक्त बिता रहे होते हैं। आप खुद के ख्यालों के साथ वक्त बिताते ही नहीं हैं।
it is very very scary to actually live in silence. तो जितना खुद के साथ वक्त बिताएंगे आप अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, उसी के चलते आप रिश्तों को भी समझ पाएंगे. एंड पांचवी चीज़ वक्त. अगर आप वक्त को मैनेज कर सकते हैं तो आप किसी भी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं. इट इज़ द ओनली एसेट दैट एवरीवन irrespective of status or money or privilege gets in exactly the same amount. तो वही 24 घंटे हर एक इंसान के पास है, लेकिन उसका आप क्या करते हैं that will determine where you go in life. Sir, the next question is from a reader to an author. So, I have read, I read quite some. I won't say I'm a bookworm, but I do read. But I have read a lot about, in your books as well, that you talk a lot about leadership. And I feel leader is not, leader doesn't mean कि बहुत लोगों की following हो. Leader आप खुद की भी life के होते हो. That's a perspective that I've gained. So, what kind of qualities like a young adult should actually incorporate in their behavior in order to become leader of themselves? So yeah, that's an issue. I would say 3 things. Number 1, know yourself. जितना आप खुद को जानेंगे उतना ही आप लोगों को जान पाएंगे. Because हम खुद को नहीं जानते हैं, हम बहुत ट्रिगर हो जाते हैं, हम बहुत जजमेंटल होते हैं, हम बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम खुद कौन है. तो अगर मैं बोलूँगा यार तुम्हारे पीले बाल तो बहुत बेकार लग रहे हैं, he is not going to be like ऐसे बोल दिया because he knows उसके पीले बाल नहीं है. But I will like यार तुम ठीक नहीं लग रहे हो, मोटे हो गए हो, इंसान नहीं लगा ऐसे कैसे यार. Because there is no awareness as such of who you truly are. So please focus on that. Number 1. Number 2, it is an insane ability to be able to see why do people behave the way they do. खुद को तो हमें लगता है हम बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान ने वो क्यों किया होगा. क्योंकि कोई भी सुबह उठ के ये नहीं बोलता कि आज मैं किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करता हूँ. Very few people think about that. They're just going about their own life. But if what they did hurt you, disturbed you, affected you, try and understand कि उन्होंने ये क्यों किया होगा. Because if you're able to put yourself in the shoes of someone else, you actually have a superpower. And तीसरी चीज़ is about the ability to make decisions even in ambiguity. मुझे ये लगता है कि एक खुद का लीडर बन पाना उसकी बहुत इम्पोर्टेंट एक खूबी और एक कला है कि मैं विदाउट डेटा भी डिसीजन ले सकता हूँ कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए. Once you get there, I think you're in charge. Thank you so much, sir. This was a conversation that I remember for years, and you're an inspiration for millions. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Wonderful questions.